Hello and welcome to SS Studio guys, and this is your mentor Sanyukta Singh, and I am here with the second episode of Situation Test, under which I am going to tell you about the categories from which you get all type of questions. So if you have not subscribed my channel, go and subscribe it, hit the bell icon for notifications, because इतने important sessions तो guys आपको और कहीं नहीं मिलेंगे. So quickly let's get started to this episode. So guys, first of all, let me give you a 2 minutes brief of what are all asked in situation test, what kind of topic. So आप लोगों को लगता होगा कि since this is a designing college and ये designing entrance है, तो सारे topics fashion and design से related ही होते होंगे. So let me tell you guys, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. The topics are really general, inspired from your day-to-day life, inspired from your day-to-day environment. जैसे कि पार्क हो गया, सर्कस हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, कॉफ़ी शॉप्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, किसी थीम पे कोई मैस्कॉट हो गया. सो दीज ऑल आर द टॉपिक्स. सो अब मैं इसके बारे में डिटेल में आपसे बातें करने वाली हूँ. एंड दीज ऑल टॉपिक्स फॉल अंडर 6 मेजर कैटेगरीज. Now guys, the first very important category is product design. Yes, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो. Under this category, you will get any kind of product like souvenirs हो गए, prizes हो गए, trophies हो गया, medal हो गया, any kind of furniture हो गया, any kind of home decor appliance हो गया, item हो गया, fan हो गया, AC हो गया. So any kind of these products will be asked to you to draw inspired from any kind of theme. Now ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको inspiration और theme मिले, but if you are getting one, आपको उससे inspired ही बनाना है. Again, if you're not getting one, it's always good to take an inspiration, because ये आपका thought process and creativity show करता है. For example guys, design a bed or a study table of your kids room or any teenager's room, or design a cupboard for any professional, or design a working table or transformable फर्नीचर फॉर एनी आर्किटेक्ट. तो ये सारे आपके इस टाइप के प्रोडक्ट कैटेगरीज आ सकते हैं. सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट अंडर दिस टॉपिक? अंडर दिस टॉपिक योर क्रिएटिव आइडियाज़, योर मटीरियल हैंडलिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि आप बहुत सुंदर बनाओ उसको. नो डाउट सुंदर तो बना सकते हो, बट सुंदर होने से भी ज़्यादा आपका वो 3D जो मॉडल है, दैट मस्ट बी creative, that must have innovative ideas, thought process and skills, must have very good material handling. तो इस पे ही आपको मार्क्स मिलते हैं. So under this major category of product design, I am giving you the particular topics जिस पे आप practice कर सकते हो. So have a look to the slide. Now the second most important category is guys thematical design. So under this category you will be provided with any kind of inspiration or theme or any kind of quotation or any kind of phrase जिसके ऊपर आपको वो पूरा का पूरा मॉडल बनाना होगा. Now it can be based on social issue, it can be a simple quotation like smoking is injurious to health, like slow and steady wins the race. आपको एक पूरा quotation दिया होगा, and on that quotation, on that behalf आपको एक 3D मॉडल डिज़ाइन करना होगा. So under this model you are really free to design anything. अब इस प्रॉपर थीम के ऊपर आप कोई प्रोडक्ट भी डिज़ाइन कर सकते हो, कोई पपेट भी बना सकते हो, कोई विंडो डिस्प्ले भी बना सकते हो, कोई इंटीरियर भी बना सकते हो, कोई वॉल डेकोर भी बना सकते हो. सो अगेन अंडर दिस टॉपिक व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर ऑल्सो मटीरियल हैंडलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. हियर ऑल्सो योर क्रिएटिव रिप्रेजेंटेशन, योर स्किल्स जो कि आप दिखाओगे, आपका आइडिया जो आप दिखाओगे बिहाइंड दैट होल 3D मॉडल इज़ इम्पॉर्टेंट. कलर कॉम्बिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये थीमेटिकल है. एंड अगेन रिपीटेडली इन एवरी अदर सेगमेंट्स जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, मैं उसमें ये बोलना चाहूँगी कि आपको अपने क्रिएटिव थॉट्स एंड आइडियाज़ पे ध्यान देना है rather than only beautifying your whole 3D model. So related to this very thematical design category, here are the topics on which you should go and practice.
guys, what all topics can come under thematical? It can be child labor, it can be organ donation, it can be ragging, anti ragging, जो कि अभी मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन में 2021 में क्वेश्चन आया भी था, तो इस पे भी आपका प्रॉपर थीमेटिकल बन सकता है। पोलियो इराडिकेशन, टेररिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया। अभी हमारे 2020 में कोरोना बहुत था, तो कोरोना पे बेस्ड हो गया, हाउ हैज़ लाइफ बीन चेंज्ड आफ्टर कोरोना, हाउ कोरोना हैज़ अफेक्टेड मैनी ऑफ आवर्स लाइफ। इस पे हो सकता है। ऑनलाइन क्लासेस अभी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बच्चों के अभी तक स्कूल्स नहीं खुले, तो इस पे कोई आपको क्वेश्चन आ सकता है, इस पे बेस्ड आपको कोई पूरा थीमेटिकल 3D मॉडल बनाना आ सकता है। सो देयर आर वेरियस एंड न्यूमरस टॉपिक्स जिस पे आपको अंडर थीमेटिकल डिज़ाइन प्रैक्टिस करना चाहिए। सो अगर आप सारी प्रैक्टिस कर लेते हो, सो यू विल बी गुड टू गो फॉर योर सिचुएशन टेस्ट। Now guys, the third most important category is set design. Now set design is also called space design. Under this आप बहुत सारे workplaces design कर सकते हो, workplace of an architect, workplace of an interior designer or a fashion designer or any kind of designer, workplace of a doctor, workplace of a lawyer, workplace of a cobbler, कुछ भी आ सकता है। ये सारे जो categories, ये जो सारे मैंने workplaces बताए हैं, they fall under space design or set design. You can be set to draw the office area or the theater area or indoors, outdoors, exteriors, ये सब कुछ under this set design fall करता है। Now you can be set फ्यूचरिस्टिक क्लासरूम बनाओ 2030 के लिए, तो वहाँ पे आपके आइडियाज़ का इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है कि आप पेपर से कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से डिपिक्ट ना कर पाओ, बट यू कैन पोर्ट्रे दैट आइडिया एंड यू कैन राइट इन योर राइट अबाउट दैट। सो ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक्स आपके सेट डिज़ाइन के अंडर फॉल करती हैं। इट मे इंक्लूड कॉफ़ी शॉप्स, इट मे इंक्लूड रेस्टोरेंट्स, इट मे इंक्लूड ढाबा। अगेन अंडर दिस यू कैन बी गिवन एनी काइंड ऑफ इंस्पिरेशन। लाइक ऐसा हो सकता है कि आपको एक रेस्टोरेंट बनाना है इंस्पायर्ड फ्रॉम द थीम विलेज। नाउ बहुत आप लोगों में से किसी ने पिंड बालूची आप कहे होगे ना, पिंड बालूची इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम अ विलेज लाइफ, ठीक है। तो हो सकता है कि ऐसे थीम भी इंक्लूड हो जाए आपके सेट डिज़ाइन में। सो थीम्स तो आपको प्रैक्टिस करनी ही है, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ इंस्पिरेशन बिहाइंड एनीथिंग। जो भी आप बनाते हो तो इंस्पिरेशन मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो भी ठीक है। सो दीज ऑल टॉपिक्स फॉल अंडर सेट डिज़ाइन। सो आई एम गोइंग टू गिव यू सम ऑफ द लिस्ट ऑफ सेट डिज़ाइन। सो हियर इज़ द लिस्ट। Now the fourth important category is guys character design. Now character design के अंदर क्या fall करता है? Puppets हैं, mascots हैं, dolls हैं, any kind of cartoon characters है। Again they might be inspired from any kind of theme. Like हो सकता है कि ऐसे questions आए कि draw a puppet inspired from corruption, draw a mascot for any outlet, any restaurant। तो अभी जैसे आपने देखा होगा डोमिनोज़ का कोई भी मैस्कॉट नहीं है एंड मैकडी का मैस्कॉट है, सो हो सकता है डोमिनोज़ का मैस्कॉट आ जाए। सो फॉर दैट अगर आपने मेरा मैस्कॉट का सेशन देखा है देन आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, बिकॉज यू मस्ट नो कि लोगोज़ एंड जो ब्रांड है उसके प्रोडक्ट कैटेगरीज के कलर्स इंक्लूड होते हैं अंडर इफ़ यू आर डूइंग अ मैस्कॉट। बट हियर इन सिचुएशन टेस्ट लाइक एवरी टाइम इट्स नॉट पॉसिबल कि जो कलर्स आपको चाहिए वो आपको मिल जाए। सो इन दैट केस आपको एलिमेंट्स बनाने होंगे, प्रोडक्ट्स बनाने होंगे। So all of these categories fall under character design. So many of you what you do कि आपको puppet and mascot and dolls बनाने नहीं आते, so in that case you always choose any other question. लेकिन मैं आपको बता दूँ these questions consist एक्स फैक्टर। हाउ? बिकॉज बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये टॉपिक चूज़ ही नहीं करेंगे, एंड अगर आप ये टॉपिक्स चूज़ करते हो और उस पर काम करते हो देन ऑब्वियसली इट विल बी रिकग्नाइज। आप खुद सोचो इफ़ इन्विजिलेटर और द एग्जामिनर इज़ व्यूइंग ऑल द प्रोजेक्ट्स एंड वहाँ पे उसको बिल्कुल रैंडम चीज़ें दिख रही हैं, इंटीरियर्स ही दिख रहे हैं एंड गार्डन्स ही दिख रहे हैं, मार्केट प्लेसेस ही दिख रहे हैं, एंड बाकी क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट ही नहीं किया किसी ने। सो
इन अमंग्स देम अगर आपने कुछ यूनिक अटेम्प्ट कर लिया है, देन इट विल डेफिनेटली क्रिएट अ एक्स फैक्टर. सो फॉर दैट यू मस्ट प्रैक्टिस. डॉल्स हो गए, मैस्कॉट्स हो गए, पपेट्स हो गए, कार्टून कैरेक्टर्स हो गए. एंड फॉर दैट इन माई अपकमिंग सेशंस आई एम गोइंग टू गिव यू अ डेमो रिलेटेड टू पपेट्स, कि उसको कैसे बनाते हैं एंड how you do the presentation even, because only making is not important, presentation is equally important. So guys, here is the list of character designs जो कि आपको practice करने चाहिए if you are appearing for situation test. Now the next important category is, guys, accessory design. So it is somewhat related to product design, but accessories में lifestyle accessories भी आती हैं. So under this category, guys, you might get asked to make a craft or a 3D model inspired from any theme, and the product category, the accessory category might be any footwear, any bag, any jewelry का set. Now jewelry का set है, हो सकता है कि राजस्थानी कल्चर से इंस्पायर्ड आपको jewelry का set आ जाए बनाने को. हो सकता है वाइल्ड लाइफ या फिर ट्रॉपिकल से इंस्पायर्ड आपको कोई फुटवेयर बनाने को आ जाए या फिर बैग्स बनाने को आ जाए. सो बैग्स, बेल्ट्स, टाइज, ज्वेलरीज, टियाराज, ये सारे फॉल करते हैं एक्सेसरी डिज़ाइन के अंडर. सो अंडर दिस व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़ you are going to talk about, you are going to recognize the given inspiration or the theme, and you must collect the elements related to that theme and then get back to your whole 3D model. Then only you will be able to score a good mark. So here is the list of accessory design topics you must practice. Again, the most important topic is utility kit. Now under this very topic आप क्या बनाने वाले हो, आपको क्या डिमांड आएगा to make any kind of tool kit for the professionals given, like हो सकता है डॉक्टर का टूल किट आ जाए, मैजिशियन का आ जाए, ब्यूटिशियन का आ जाए, आर्किटेक्ट का आ जाए, पेंटर का आ जाए, डिज़ाइनर का आ जाए. सो what all things you are going to keep in mind is कि आप थोड़ा इनोवेटिव सोच सकते हो. हाउ इनोवेटिव? इट्स नॉट नेसेसरी कि आप प्रॉपर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ही बनाओ उस टूल किट में. यू कैन ऑलवेज think differently, like you can make a jacket come tool box, you can make a jeans come tool box, or any kind of belt जिसके अंदर वो tool box attached हो. सो ये क्या दिखाएगा, ये आपके क्रिएटिव थॉट प्रोसेस दिखाएगा. डैट विल बी हैंडी, वेरी ईजी टू यूज़. ऑल्सो वॉट यू कैन डू अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी इज you can make these models in the working mode. Now how working mode? You can make it slightly open, you can make some of the tools. Now tools are not necessary कि आप उसको 3D में बनाओ. आप उसको you will get a cardboard sheet even, that is very hard. तो आप उसको simply कट करके few of the tools आप दिखा सकते हो. That tool is belonging to which professional, whatever is the question. आप उस professional के लिए simply 3-4 tools बना सकते हो, showcasing in the tool box. So this is how you should attend the questions if it is asked, the questions related to utility kit. Now guys, here is the list of utility kits which you must practice if you are appearing for that. एंड अगर आपने इन सारे कैटेगरीज की प्रैक्टिस कर ली है, विच इज़ लाइक टूल किट्स फॉर मैजिशियन, टूल किट्स फॉर मैकेनिक और अ कॉबलर और अ पेंटर और अ डिज़ाइनर और अ आर्किटेक्ट, और एनी स्कूल बैग फॉर एनी पर्टिकुलर एज ग्रुप, लाइक बच्चों का स्कूल बैग हो सकता है, तो वो स्कूल बैग भी क्या है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ किट फॉर दैट वेरी स्टूडेंट. किसी टीनेजर का हो सकता है, किसी गेमिंग जो स्टूडेंट्स सीख रहे होंगे, गेम डिज़ाइन सीख रहे होंगे, उनका हो सकता है. सो देर आर वेरियस कैटेगरीज अंडर विच मैनी काइंड ऑफ टूल बॉक्सेस फॉल. तो हियर आर द लिस्ट जो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए. So guys, I hope this session was useful for you, and if you have any kind of doubt, go to my comment section and put up your comments there. Also you can ping me on Instagram, and if you need any kind of online classes or the classes of situation test, you can contact me on the number given below or on the screen. My team will get in touch with you for the detailed online sessions. I am always there, and if you have not subscribed my channel, go and subscribe it.
हिट द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन, बिकॉज इतने इंपॉर्टेंट सेशंस और कहीं नहीं मिलेंगे. टिल देन गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय.